it later on, but for me, you are No, right now you will give your introduction. okay, fine. So, my name is Srijita Nair. I am a student of SNDT TMF Smart Center. I belong to a GST batch. And now, can I welcome everyone? Okay, I would Yes, like to yes. welcome, thank you so much, ma'am. I would like to welcome our Assistant Professor and Project Director, Dr. Bhaskar Igwe, sir, and our Center Manager, Ms. Arshia, ma'am, and also our event coordinator, Ms. Namrata Satpute, ma'am, and special mention to our speaker of today's lecture, Ruchi Goyal, ma'am, who is a CBT practitioner and psychological counselor. So thank you so much, ma'am, for giving us some time for today's section. And Thank also, I would like to welcome team of SNDT Center and participant. To start the program, I request Dr. Bhaskar Igwe sir to give information regarding SNDT University. Thank you. Thank you, Shrijita. Welcome, Ruchi Goyal, madam, and thank you all so students. much. Yes, very good morning and happy Diwali to all of you. Very good morning and happy Diwali Yes, to all of you too. yes. I'll give a brief introduction about the SNDT. SNDT, it means Shrimati Nathibai Damodar Thakursi. SNDT, it is a women's university. It is the first women's university in Southeast Asia. The university is founded by Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve in 1916 for a noble cause of women's education. SNDT Women's University is committed to the cause of women's empowerment through the access education, particularly the higher education, through relevant courses in formal and non-formal streams. The university is committed to meet the changing socio-economical needs of students with human values and purposeful social responsibility, and to achieve excellence with quality in every activity through the vocational and professional courses for women. The motto of university is Sanskrita Sri Parashakti. It means an enlightened woman is a source of infinite strength. तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए महर्षि कर्वे जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. Our department is a department of lifelong learning. Lifelong learning means हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन की लड़कियां हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर हमने 2017 से टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ एम्प्लॉयबिलिटी कोर्सेस हम करते हैं. इसमें हमें बहुत अच्छा अनुभव आया है कि जैसे हम पहले कहते थे कि एजुकेशन थ्रू लड़कियां एम्पावर हो सकती है, उसके आगे जाके अब हम कहने लगे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्टूडेंट कैन एम्पावर. क्योंकि जब उन्हें जॉब मिलता है, जब वो पैसे कमाती है, तो वो घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है. ये हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, समाज का एक हिस्सा बन जाती है. तो एम्प्लॉयमेंट एम्पावर्स वुमेन ऐसे हम कहते हैं. इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी कोर्सेस हमने 2017 से टेक महिंद्रा के साथ शुरू किए. These courses are totally free of cost for women. Those are socially and economically weaker. उसके लिए जो हमारी टीम है वो काउंसलिंग करती है पूरा उनको और ट्रेनिंग देती है और बाद में उनका प्लेसमेंट भी करती है और उसके बाद जाकर उनका फॉलोअप भी रखा जाता है. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बार सोचते हैं, अगर कुछ फिजिकल हेल्थ हमारी बिगड़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में उतना अवेयरनेस अभी तक सोसाइटी में नहीं है. और स्पेशली विमेन की मेंटल हेल्थ, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं उसके बारे में, या फिर जो वर्किंग विमेन है उनकी भी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, या जो घर की विमेन है उनकी मेंटल हेल्थ क्या
कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हमारे सेंटर ने सोचा और उसके बारे में इम्पोर्टेंट वेबिनार आयोजित किया। उसके लिए मैं अर्चना मैडम और उनकी टीम और रुचि मैडम का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Bhaskar Igwe sir. Now I would like to welcome our Arshia ma'am and request her to please give information regarding Smart Center. Yeah, thank you so much, Srijita. I hope I am audible to all of you. Yeah. Yes, ma'am. Okay, good. भास्कर सर ने तो ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन दी है SNTT और about Tech Mahindra Foundation and Smart Center. Tech Mahindra Foundation is the CSR arm of Tech Mahindra, and it was set up in 2007 with the vision of empowering through education. But at our center, means this is only for the female candidates. Tech Mahindra Foundation के all over India में almost 110 center है अलग अलग state में, and in Pune we have almost 9 center. And उसमें SNTT का जो है वो only for the girls candidates के लिए, as we are part of a women's university. And we are started this center from 2017. As Dr. Bhaskar said that most of time we listen that education empowers women. That is right, totally right. Education definitely empowers to women. But what we feel and what we believe that employability empowers women. मतलब जब एक औरत या फिर एक लड़की जब खुद कमाने लगती है, जब उसके हाथ में खुद का पैसा आता है, तब जाके वो एम्पावरमेंट होती है, ऐसा हमारा मानना है। अगर हम देखने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं या फिर बहुत सारी औरतें हैं जो ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, बट दे आर नॉट डूइंग जॉब। मतलब ग्रेजुएशन हो जाता है तो शादी हो जाती है, फिर वो उनके फैमिली में बिजी रहती है। तो इसको हम एम्पावरमेंट बोलेंगे क्या? सिर्फ आप एजुकेशन ले रहे हो लेकिन वो एजुकेशन का आपका कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। यस, डेफिनेटली आगे जाके वो उनके बच्चों के पढ़ाएंगे, उनका फैमिली और ज्यादा स्टेबल होगा, बट व्हाट अबाउट हर सेल्फ? वो खुद के लिए क्या कर रही है? सो ये जो कोर्स है ये तो 4 months का है, और हमारा मानना तो यही है कि 4 month में कोई बोलते हैं ना कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे तो आप 4 month में फ्लुएंट इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले। सो इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर गर्ल्स। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जिसका फीस जो है, मतलब जो आपका फीस का अमाउंट होता है वो टेक महिंद्रा फाउंडेशन हमको पे करता है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बट इट इज पेड आउट। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज पेड। एंड स्टार्टिंग से लेके टिल द एंड ऑलमोस्ट काउंसलिंग का जो पार्ट होता है वो बहुत बार रिपीट होता है स्टूडेंट्स के साथ। एज आई सेड कि तो वो भास्कर सर ने भी बताया कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो गर्ल्स होती है उनको हम एडमिशन देते हैं, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वैसे देखने जाए तो बहुत सारी स्टूडेंट्स आती है हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ 3 round ऑफ इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू में पता चलता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आप बाहर कहीं पे फी पे करके कोर्स कर सकते हो तो आप बाहर ही जाके कोर्स करो, हम यही सजेशन देते हैं। ये जिनके लिए है जो कम्युनिटी में से आते हैं, स्लम एरियाज में से आते हैं, जो फीस नहीं पे कर सकती है, उनके लिए ये कोर्सेस है। वी हैव अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेस एंड मोस्ट ऑफ टाइम ना व्हाट आई फील कि उनको ट्रेनिंग से ज्यादा काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइक आज का जो सेशन है हमारा मेंटल हेल्थ पे है। सो ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है वो वुमेन में ज्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब जैसे स्कूल में होता है ना कि 9th की क्लास में 9th के उम्र के बच्चे हो गए, 10th के उम्र के बच्चे हो गए, हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता है। अगर इट्स GST अकाउंट असिस्टेंट कोर्स तो हमारे यहाँ पे अलग अलग एज क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब फ्रॉम 20 एज टू टिल 40 एज तक भी औरतें होती है कोर्स में। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैरिड होती है, कुछ विडो है, कुछ डिवोर्सी है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो गए होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टेबल नहीं होते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो व्हाट वी फोकस ऑन टू डू देयर काउंसलिंग। हमको पहले उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। हमारे साथ अलग अलग NGO टाइप है जो औरतों के लिए काम करती है। तो अगर हमको लगता है एक लेवल पे कि हमको पॉसिबल नहीं है उनका काउंसलिंग करना,
तो हम उनको एनजीओ को कनेक्ट कर देते, तो एनजीओ उनका काउंसलिंग करती है, और जब उसमें कॉन्फिडेंस नजर आता है, वैन हमको लगता है कि वो स्टेबल है, तब जाके हम उस लड़की का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी आपके पास बल्क में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमको वर्कआउट तो इंडिविजुअली करना पड़ता है उसके ऊपर। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमने फर्स्ट टाइम, या डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय टीम कि हमने सक्सेसफुली ऑनलाइन कोर्सेज रन किए हैं इस साल, जो सभी के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और अभी के जो बैच है हमारे 4th and 5th बैच है, पहले जो 3rd बैच हो गए, 3 बैच हो गए, तो उसमें क्या हुआ ना कि जब स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में आते हैं तो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, या फिर अगर वो ओपन अप भी नहीं होते तो हमको पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ये लड़की बोल नहीं रही है, तो हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कोर्सेस में ना वो एक ड्रॉबैक था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बाबा किसको क्या इश्यू है, क्योंकि अभी आप भी देख रहे होगे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का कैमरा ऑफ है। तो अगर कैमरा ऑफ है, आपका फेस ही नहीं दिख रहा है, तो हम आपको देखेंगे कैसे और हमको पता कैसे चलेगा। और ऑनलाइन क्या है ना कि आपको सिर्फ सुनना होता है, आपको कुछ बोलना नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है ये सब। तो ये एक ऑनलाइन का मुझे ये एक तो ड्रॉबैक लगा, माइनस पॉइंट लगा ऑनलाइन कोर्स का, कि मैं उतना ज्यादा टची नहीं हो पाई मेरे स्टूडेंट्स के साथ। बट जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हो गए ना, मोस्ट ऑफ मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस स्टूडेंट्स के मेरे सामने आए। लाइक जब हम लोग एडमिशन देते हैं एज एग्जाम्पल, तो हम लोग पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि बाबा आपके बच्चे ने आपको बताया है क्या वो यहाँ पे क्या कोर्स कर रही है। तो फिर मोस्ट ऑफ हस्बैंड लोग तो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आगे जाके तो वो जॉब करेगी ना, वो कमाने वाली है, तो हमको चल जाएगा। तो वो परमिशन दे दी थी उन्होंने, लेकिन अभी डेली तो 4 आवर्स का सेशन होता है, तो 4 घंटा तो उसको सेशन के लिए बैठना पड़ेगा। और घर में रह के ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में फिर घर के काम पे उसका इम्पैक्ट हो रहा था, तो वो एक नेगेटिविटी का माहौल उनके फैमिली में बन गया था, और फिर ऐसे से लड़कियों के वायलेंस के केसेस सामने आ रहे थे। तो ऑनलाइन क्या है कि अपना कनेक्टिविटी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स को जो हेल्प करते हम लोग, जो काउंसलिंग करते, वो कहीं पे कम पड़ गया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर यही स्टूडेंट्स मेरे सामने होते तो हम लोग उनको समझा पाते, उनके हस्बैंड्स को समझा पाते, उनको फैमिली को समझा पाते। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी ना, कोई समझने के माहौल में ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ पे हमको सेशन रखना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट क्वालिटी लाइफ ऑफ वर्किंग वुमेन, मतलब हमारा वेबिनार का नाम है मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ ऑफ वर्किंग वुमेन। स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि एडमिशन ले लेते हैं, हमको आगे जाके जॉब मिलेगा, बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब जॉब करने की बारी आती है, इंटरव्यू भी देते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, लेकिन क्या है ना, इंडिया में हमको हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है एज अ वुमेन। अगर हस्बैंड है तो हम हस्बैंड की परमिशन लेंगे, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स की परमिशन लेंगे, ब्रदर होगा तो ब्रदर की परमिशन होगे लेंगे। इट्स एन इंडियन कल्चर। और एक हमारा होता है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमारे डैडी को या फिर हमारे हस्बैंड को, और फिर हस्बैंड बोलेगा नहीं नहीं इतने दूर नहीं जाना, अरे ये तो इतना कम सैलरी है, अरे तू काम को जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। तो ये 4 महीने के पहले स्टूडेंट्स ये नहीं सोचते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स जब उनको जॉब लगता है ना, तब वो सब ये बातें डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आता है। ऐसे बोलने से मैं बोलूंगी कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ करना है, तो आपको कन्विंस भी करना आना चाहिए आपके पेरेंट्स को, नहीं तो फिर ये एजुकेशन का कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। हम 14-15 साल स्कूल में पढ़ते ही आए ना, क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस कोर्स। और हम लोग बोलते हैं कि ये फ्री कोर्स है, अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आप कोर्स को एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि आप किसी नीडी गर्ल्स की सीट ले रहे हैं। एंड वी हैव लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्लेस्ड हो गई है और जिन्होंने अपने लाइफ में इतने सारे चेंजेस किए हैं। लाइक वन एग्जाम्पल, वी हैव स्टूडेंट नीलम मडवाड़े, जो स्लम एरिया में रहती थी, उसने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया। शी इज जस्ट 12th पास स्टूडेंट, मैरिड है वो, और उसका एज भी ज्यादा था। एंड शी डोंट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसीलिए उसने वो हमारा कोर्स ज्वाइन किया। वो ऑलरेडी एक डेंटल क्लिनिक में काम करती थी फ्रॉम लास्ट 10 years ऑलमोस्ट, एंड शी इज गेटिंग ओनली 2000 सैलरी पार्ट टाइम का। तो यहाँ पे कंप्यूटर वो सीखा उसने, और फिर वो उसका जो सीनियर है, जो डॉक्टर थे, उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि अब ये कर सकती है कॉन्फिडेंटली काम। उन्होंने उसको प्रमोट किया, उसको फुल टाइम किया,
एंड उसका सैलरी 15,000 किया आफ्टर आवर कोर्स। अभी क्या है कि उस लड़की ने खुद का घर खरीदी किया है, उसने खुद का फ्लैट लिया है। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम स्लम एरिया टू मूव ऑन अ गुड होम। क्या है कि उसने उसको हस्बैंड को कन्विंस किया और उसके हस्बैंड ने भी उसको उतना सपोर्ट किया। देखिए वुमेन है तो लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपको कन्विंस भी करना आना चाहिए। एंड जॉब करने के बाद ना हमारे लाइफ में बहुत सारे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, बहुत सारे। दैट्स व्हाई द वेबिनार नेम इज क्वालिटी लाइफ ऑफ वर्किंग वुमेन। तो जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्वालिटेटिव चेंजेस क्या क्या आते हैं। एंड इतना बोल के मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग कि रुचि जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही एक रात को मेरा फेसबुक देख रही थी, आई हैव कनेक्टेड इन वन ऑफ साइकोलॉजी ग्रुप, तो वहां पे मैंने रुचि जी का एक आर्टिकल पढ़ा था मेंटल हेल्थ पे, तो मुझे बहुत पसंद आया। एंड फिर मैंने मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनका पेज कौन सा है, मैं कहाँ पे रिक्वेस्ट डालूं, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड नहीं हूँ। सो आई जस्ट ड्रॉप मैसेज कि मुझे ऐसा ऐसा वेबिनार करना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कर सकते हो क्या। एंड आई गॉट इन अ नेक्स्ट 10 मिनट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम हर साइड। मतलब वो तो मुझे बात बहुत पसंद आई। मतलब मैंने आई थॉट मैंने रात के 11 बजे मैसेज डाला था मैम को, एंड मैम से भी बहुत जल्दी मुझे रिप्लाई आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में कि जो हम जैसे औरतों के लिए कुछ करती है। और मेरा मानना है कि एक वुमेन है दूसरे वुमेन को ज्यादा समझ सकती है। मेंटल हेल्थ पे बोलने वाले बहुत मैन भी है, मतलब मेरे जो पहचान में है बहुत सारे प्रोफेसर है। मीन्स अवर डॉक्टर भास्कर आल्सो, वो भी पीएचडी है और वो भी मेंटल हेल्थ पे बोल सकते हैं, उनका काउंसलिंग का कोर्स हुआ है। बट आई फील मैंने उनको आज तक कभी बोला नहीं है कि सर आप मेंटल हेल्थ पे सेशन दो, क्योंकि मेरा खुद का वो मानना है कि एक जब औरत औरतों के साथ बात करती है ना, तो वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। सो यस, थैंक यू सो मच रुचि जी फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच श्रीजिता, थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्शिया मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू रुचि मैम, क्योंकि अर्शिया मैम ने कहा कि उन्होंने मैसेज डाला और आपने 10 मिनट में रेस्पॉन्स किया। आज के ज़माने में वो भी 11 बजे नहीं करता है कोई, तो आप इससे पता चलता है आपका दिल कितना बड़ा है। तो थैंक यू सो आप मच। लोग नोबेल कॉज पे काम कर रहे हो इतना ऑब्जेक्टिवली, तो डेफिनेटली सोसाइटी में मैं भी हूँ, लोगों को हेल्प करना इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस एसएनडीटी स्मार्ट सेंटर में। जैसे मैम ने कहा, हाँ एक ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन थ्रू पढ़ने का, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 1.5 मंथ्स का, जो टीचर्स जितने सपोर्टिव रहे, जो भी डाउट्स क्लियर करते हैं, स्पेशल थिंग जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि जो हम सीखते हैं उसी के बेसिस पे वो एक प्रोजेक्ट देते हैं, तो हमारी लर्निंग तो होती है, साइड बाय साइड प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। तो वो एक चीज़ है। एंड ऑल्सो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम हमारे टैलेंट को शोकेस करें, जैसे कि मुझे मिला आज होस्ट करने का। ये मेरा लाइफ का पहली बार मैं होस्ट कर रही हूँ कोई सेक्शन, तो अगर कोई गलती हुई तो माफ करना। And talking about the topic of discussion, that is mental health and quality life of working women, we all know that mental health is not something that can be cured easily, but there are treatments that can be done in order to minimize those problems. So recently there was a study that was done, which involved 240 married women, and the study revealed that 32.9% of the respondent had a very poor mental health, and only 10% of these women had sought out those mental health through different kind of services. And they were facing problems as like जैसे अर्शिया मैम ने कहा, they face problem through society, from their personal life, and from their professional life as well. So thus certain remedies is required in order to solve this problem. For that we need your help, Ruchi ma'am. So I would like to request Ms. Namrata Satpute ma'am, who is our event coordinator, to introduce our guest speaker. Thank you. Good morning, everyone. It's a great pleasure for me to introduce our speaker, Mrs. Ruchi Goel, who is going to talk to us about mental health and quality life of working women.
This is a subject in which we should all be deeply interested because of the sentence that is a woman have always been known as a multitasking abilities. Our speaker, although having spent almost her entire career helping clients overcome their personal and social challenges for a balanced and happy life. She is associate member of Singapore Association for Counseling. Currently, she is practicing as a CBT practitioner and the psychological counselor in the Chanduli Poi at the Prudence Clinics in Mumbai. She is providing counseling services to couples, students, aged family members on various issues ranging from the stress, identity crisis, mood swing, relationship, parenting, cranky kids, professional and personal challenges, etc. under strictly confidential. She has long teaching experience since 1991 in India and Singapore, including Bombay Scottish School, Millennium International School, Noida, and Singapore schools. She has also engaged in voluntary counseling in juvenile prisoners and elderly inmates at Rehabilitation Center in Singapore. Without further delay, please join me in welcoming our speaker, Ruchi Goel ma'am. Thanks. Thank you, Uh, Namrata, for your introduction. And I would like to thank all the team organizers for having me here. और आज की प्रेजेंटेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बनाई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रेजेंटेशन का फायदा उठा सके। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। Ma'am, sorry to interrupt you. I हाँ have something to say. हाँ There is certain rules and information that I would like to give to our participant. श्योर First one is that please don't unmute yourself because it would create lots of disturbances, and this topic is very important. And second is question and answer segment would be done at the end of the section. So now I would like to say Ruchi Goyal ma'am to please continue and explain. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी माय स्लाइड? Yes, ma'am. ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे आपको पता है, मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है, और इसको हम समझेंगे वर्किंग विमेन के एग्जाम्पल से। आप जहाँ पे आप जिन लोगों के साथ रहते हो या सोसाइटी में, आप देखते होगे कि जिनको भी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, उनको आप देख के बता सकते हो कि उनको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो हम ये देख के बता ही नहीं सकते कि उसके दिमाग में या मन में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हर 7वें व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होती है। और अगर हम इंडिया के डेटा के बारे में बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में 20 करोड़ लोग डिप्रेशन से प्रभावित रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने का बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट सीख जाता है।
जबकि वो 6 महीने का बच्चा ना बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कर सकता है। लेकिन हम बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, इससे वो हमारे टच से, हमारे व्यवहार से सीख जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का हमें कैसे इम्पैक्ट करती है, बचपन से ही जो जिस तरीके से हमारे अनुभव होते हैं, वो अनुभव हमारे, उनसे हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं और उसी से हमारा व्यवहार आता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी। आप ये समझिए, आपके घर में एक स्कूल जाने वाला बच्चा है और उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, और एग्जाम से, जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले पता चलता है कि उसने अपने नेक्स्ट दिन में, सपोज उसका इंग्लिश का एग्जाम है, और उसने उसकी जगह अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कर ली, और सोने से पहले आपको पता चला कि उसने तो गलत एग्जाम की तैयारी कर ली है। तो बच्चा तो डर गया एकदम देखते ही कि अरे, मैंने तो इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर ली और मेरा तो मैथ्स का एग्जाम है। तो ऐसे में पहला रिएक्शन क्या होता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम या तो बच्चे को डांट देते हैं, या हम बच्चे को, पहले तो बच्चों को मार भी दिया जाता था, बच्चा तो वैसे ही डरा हुआ है। तो आपको स्ट्रेस हुई उस समय ये देख के कि उसने गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है, उसको आप कैसे हैंडल करें। आपने क्या किया? दो तरीके हो सकते हैं कि आपने सोचा, बच्चे को कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाती है, चलो जो बचा समय है हम उस समय अपने दूसरे एग्जाम के, जिस चीज का एग्जाम है हम उसकी पढ़ाई कर लेते हैं। तो जो बच्चे ने अगर एक्सपीरियंस किया कि परेशानी के समय अगर हम थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा सोच विचार के काम करेंगे, तो हम सब परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। तो हम कैसे सोचते हैं, हम उस समय कैसे महसूस करते हैं, हम तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, और हम किस ऑप्शन पे काम करते हैं, ये सब हमारा डिपेंड करता है हम चीजों को कैसे सोच के उसको व्यवहार में लाते हैं। अगर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें, तो अब इस समय इधर पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, मार्च से कितनी प्रॉब्लम हुई है कामकाजी महिलाओं को। उनको किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनको अपने घर के काम देखने पड़े, अपने परिवार के साथ साथ अगर वो नौकरी कर रही है तो उनके नौकरी में भी उनको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों से किन किन चीजों की हमें दिक्कत पड़ी उन महिलाओं को? उनको स्ट्रेस हुआ। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में उनको हर तरीके का काम करने, उसमें टाइम मैनेजमेंट करने में उनको दिक्कत होती है। दूसरी तरफ उनको पैसे की चिंता, कितना मनी आएगा, कितना है, कितना खर्चा करना है, उनको अपने ऊपर इन सब चीजों को हैंडल करते करते कई बार अपने ऊपर खुद पर संदेह होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या वो सब चीजें कर पाएंगे। और इन सब से जब आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर हमारा सारा इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे आता है, और हम उसके बाद भी हम चाहते हैं हम खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हेल्दी रहें। तो इन रुचि मैम, जस्ट अ मिनट। यार, सबको पीपीटी दिख रही है क्या? ऑल स्टूडेंट्स? नो मैम। हाँ, देन क्लिक ना। एक्चुअली देयर इज 2 अकाउंट्स। मैम का दूसरा अकाउंट पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट है। आपके जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं ना, वहां पे सर्च करो, एक प्रेजेंटेशन दिखेगा आपको, उस पे क्लिक करो तो आपको पीपीटी दिखाई देगा। दिख रहा है? प्रेजेंटेशन ब्रैकेट में रुचि गोयल ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। यस, ओके ओके, गुड। या कंटिन्यू मैम। हो गया सबका? दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा है मैम, कहाँ पे करना है? पार्टिसिपेंट्स में चेक कीजिए। पार्टिसिपेंट्स में लिस्ट आपको दिख रही होगी ना पार्टिसिपेंट्स की? हाँ हाँ हाँ, वहां पे प्रेजेंटेशन ब्रैकेट में रुचि गोयल ऐसा एक नाम दिखाई देगा, उस पे क्लिक कीजिए। Yes, ma'am, it is visible now. ओके ओके। बाकी चरनी पण शोधा और दूसरों ने भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, मिल जाएगा। ओके।
ओनली रुचि गोयल है वो मत सिलेक्ट कीजिए, रुचि गोयल एंड प्रेजेंटेशन है वो वाला सिलेक्ट कीजिए। आई थिंक मिल जाएगा आपको, अभी आप ढूंढिए थोड़ा। ओके, यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कामकाजी महिलाओं को जो जो चुनौतियां आती हैं या पेंडेमिक की वजह से उनको किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, घर के काम, परिवार, नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम। तो इन सब चीजों को मैनेज करने में उनके पास 24 घंटे में अपने बच्चों को, परिवार को देखते समय इन सब में क्या हुआ, उनको स्ट्रेस हो गया। कई बार आपको पैसे की चिंता हो गई, और इन सब कारणों से क्या हुआ कि हमें सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम नौकरी में अच्छा कर पाएंगे, क्या हम अपने परिवार को कि जो पैसे की या खुशियों की जरूरत है हम उनको पूरा कर सकते हैं। कई बार परेशानी की वजह से, हम चिड़चिड़ेपन की वजह से हम अपने परिवार वालों के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं, उससे और स्ट्रेस बिल्ड होती है। और हम एट द सेम टाइम हम क्या चाहते हैं, हम खुश भी रहें, पॉजिटिव भी रहें और हेल्दी में भी रहें। तो आज हम 3 चीजों के बारे में करेंगे बात कि हमें कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे हम अपना सेल्फ डाउट दूर कर सकते हैं, और हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बांध के रख सकते हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे हमारे ऑफिस में हो। तो हमारे जो भी काम करना है हमारी दिनचर्या में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे कुछ थॉट्स आते हैं, हमारे ऊपर दिमाग में काम का प्रेशर रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और उन थॉट्स को जब हम मैनेज नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से हमें क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। स्ट्रेस के बाद हम बहुत सोचा विचारी, अनसर्टेनिटी आने लगती है, हमें फियर होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। इन सब की वजह से हमें एंजाइटी आने लगती है, बहुत सोचा विचारी करते हैं हम। और अगर ये 6 महीने तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डिप्रेशन आने लगता है। तो हमारे सोच से, चाहे वो हमारी स्ट्रेस है, हमारी एंजाइटी है या डिप्रेशन है, सब चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि महिलाओं में डिप्रेशन पुरुषों से दुगना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें अपनी सोच को, हम कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, कैसे हम खुश रहें। तो आज हम बात करेंगे, और डिप्रेशन के हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अभी हम डिप्रेशन के पहले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जब हमें डिप्रेशन होता है तो हम बहुत दुखी रहने लगते हैं, हमारा किसी चीज में काम करने का मन नहीं होता। इन सब की वजह से कई बार या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं या तो हम बहुत ज्यादा खाने की इच्छा करने लगते हैं, या हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से या तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है या हमारा वेट लॉस होने लगता है। जब हम चिंता परेशानी कर रहे हैं तो हमारी उसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है। जब आप ना खाना ढंग से खा रहे हैं, ना आपकी नींद पूरी हुई, आप मन से दुखी भी हैं, उसका असर क्या होगा, आप हर समय थके रहेंगे, आपको चिड़चिड़ापन होगा और आपका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तभी आपको डिप्रेशन है। अगर ये सिम्टम नहीं है तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैम ने बताया तो मुझे डिप्रेशन है। सिर्फ यही सिम्टम है तभी डिप्रेशन है। और जब आप सोचा विचारी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज से परेशान होते हैं तो कई बार क्या होता है, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। सेल्फ डाउट हम किन किन चीजों पे करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को लेके कि ऑफिस में हम काम कर पाएंगे कि नहीं, क्या मैं घर पे काम कर सकता हूँ कि नहीं, ऑफिस में परफॉर्मेंस कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं बिल्कुल ठीक कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। और हम गलती करने से भी डरने लगते हैं। और जब हम गलती कर देते हैं और किसी ने अगर हमें डांट दिया तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो हमें प्यार ही नहीं करते, कि हमारे घर वाले मुझे प्यार ही नहीं करते। तो ये क्या किया, ये सारी चीज हमने खुद ही अपने आप सोच विचार के अपने आप डेवलप कर ली। और हर इंसान में कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है।
तो अगर आप सेल्फ डाउट कर लेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को तो नजरअंदाज कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सोच में अपनी सेल्फ डाउट को ना आने दें। और जब सेल्फ डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, जब आप ये सोचिए, जब आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप कोई काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो दूसरा आप पे कैसे विश्वास करेगा? अगर आप डाउट कर रहे हो तो आप फिर दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे, दूसरे पे सोचोगे कि जब वो हमें बताएगा, हमें कहेगा, तब हम वो काम करेंगे। मतलब आप दूसरे की परछाई बन जाते हो, दूसरों के अप्रूवल का इंतजार करने लगते हो। उससे क्या होता है, आपको जो कुछ भी करना चाह रहे हो उस चीज में आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। आप ये समझिए कि आपका सेल्फ डाउट आपको फोन कर रहा है। क्या करोगे आप? क्या आप वो फोन उठाओगे? क्या आपको वो फोन उठाना है? नहीं उठाना है। आपको क्या करना है कि अपने ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में बैठा लो आप कि हम कर सकते हैं। हमें सेल्फ डाउट नहीं करना है। सेल्फ डाउट हम जहां करते हैं हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, धीमी हो जाती है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चों को हैंडल करना हो, चाहे घर देखना हो। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी हमारे बीच में हिंड्रेंस है, हमें वो नहीं लाना है। और जो हम अगर सेल्फ डाउट लाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी वैसे ही हो जाती है। तो हमारे माइंड और बॉडी में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो हम सोचेंगे हम वैसे ही व्यवहार करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे हमारे बचपन के एक्सपीरियंस है, जो हमारी सोच है, जो हमारे, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक बिलीफ, एक धारणा बना लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये इंसान अच्छा है, वो बुरा है, और हम उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझिए, जनरली एक ये देखा गया है कि लोग एक ये सोचते हैं, अगर कोई बात मदर ने कही है, माँ ने कही है, तो वो सही बात है। अगर वही बात मदर इन लॉ ने कही है तो वो बात गलत हो सकती है, उनके इरादे गलत हो सकते हैं। तो क्या है, ये एक आपने बिलीव बना लिया है ना, धारणा बना ली अपने दिमाग में कि नहीं, मदर ठीक है, मदर इन लॉ गलत है। तो आप जो भी सुनते हो उसके हिसाब से जो भी व्यवहार करते हो, जो भी इमोशन आते हैं, वो किससे आते हैं? आपकी सोच से, क्योंकि आपने धारणा बना ली है। अगर आप सोचोगे हम, मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये इनपुट दे दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो हमारी सोच, हमारा फीलिंग्स, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे बिहेवियर है, वो हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, आज हम वो समझेंगे आगे। CBT, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब है अपनी सोच। तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है, एक छोटी सी हमारी सोच, हम उसको कैसे, किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। अब हमारी उसी वजह से हमारी क्या है, हमें अपने सेल्फ पे, हमारे ऑफिस पे, हमने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और बैलेंस हम किस चीज से कर पा रहे हैं? सोच से। हम कैसे अपनी अब सोच बदल सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले क्या रखना है? विश्वास करना है अपने ऊपर, कभी भी डाउट नहीं करना है। हमें कोई भी चीज करने के लिए अपने आप को रोकना नहीं है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे? यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप सब, ज्यादातर लोग साइकिल चलाना जानते हो क्या? राइट, साइकिल चला रहे हैं, आपने शुरू किया कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या उसके बाद आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? गिरे होंगे आप सब। जहां गिरे, गलती करने से डरना नहीं है, गलती सबसे होगी, लेकिन उस गलती की वजह से अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर ले या उस काम को करना छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। उसके लिए हमें कहना है आई कैन डू,
जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे करना है, उस दिन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रही हूँ। एक सेकेंड। आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हो? नहीं। Yes, ma'am. आ रहा है? शुरू में Yes, ma'am. Yes, it is visible. नाही दिसत आहे. सर्वांना दिसतंय का? Yes, sir. नाही मॅडम, नाही दिसत आहे. काही जणांना दिसत नाही. मॅडम एकदा बघा बरं. मला वाटतं It is visible but not audible. नॉट ऑडिबल। हाँ, आवाज नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई। No, ma'am. अभी है ऑडिबल? No. आ जाएगा। ओके, मैं इस ऑडियो वीडियो के बारे में आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, लेट मी ट्राई अगेन। अभी आ रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू, इज इट ऑडिबल? No, ma'am, no audible. में बेसिकली वीडियो में क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि सीबीटी के इस सोल्यूशन की बात की है हमने, और उस सोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले सोल्यूशन में 3 चीजों पे काम करना है, अपने थॉट्स पे, अपने बिहेवियर पे और अपने इमोशंस पे। तो हम अपने थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस के लिए हमें 3 स्टेप्स, 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली है कि एक्सेप्टेंस। ऐसी बहुत बार होगा कि बहुत सारी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, हर परिस्थिति को आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो परिस्थितियां अगर वो बदल नहीं सकते हैं, उसको पहली चीज तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि आप कई बार परिस्थितियां हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद हम क्या करना है कि हमारे फोकस करना है कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल। हम प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसमें ये नहीं सोचना है, जैसे अर्शिया ने भी कहा था कि हम क्या करते हैं कि पेरेंट हर चीज में परमिशन ले रहे हैं और उसके बाद हमारा अप्रूवल लेना पड़ता है, हमें कन्विंस करना पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ क्या किया, हमने फोकस पे ध्यान दिया कि हमें कैसे अपने काम करना है। हमें ये करना है कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देना है, प्रॉब्लम क्या है उस पर ध्यान ही देना है, फोकस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने स्ट्रेंथ पे, हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई टाइम मैनेजमेंट में अच्छा है, कोई बहुत ही स्किल्स किसी की अच्छी है, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, जैसे अगर हमने एक्सेप्टेंस किया, दूसरा फोकस, तीसरा स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे कि हम सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, हम ना तो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, ना ही हम ये सोच रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, ना ही हम डिप्रेस हो रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन तीनों चीजों के करने से क्या हुआ, अपने अपने थॉट्स, क्या थॉट्स किया कि हमें क्या सॉल्यूशन लाना है, अपने बिहेवियर में किया, अपने एक्शन प्लान लिया, अपने इमोशन में लिया, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप कुछ काम कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, हम उसी में अटक के रह जाते हैं कि हम एक्सक्यूज करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं हमने ये काम नहीं किया, हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, हमें उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन के लिए किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, अगर आप ये 3 चीज करेंगे, एक्सेप्ट करोगे, फोकस करोगे और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे, तो आप
ये सीबीटी के बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जिससे आप समस्याओं को, अपने थॉट को चेंज कर सकते हो। आप क्या चाहते हो? एक खुशहाल जिंदगी। उस खुशहाल जिंदगी के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। और जब आपका माइंड हेल्दी होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तो आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी। काउंसलिंग एरिया, जैसे नम्रता जी ने पहले भी बताया था कि पेरेंटिंग, एंजाइटी, कपल्स, स्ट्रेस, ये रिलेशनशिप, बुलिंग, मूड, ये सब जनरली एरिया ये सब एरिया की मैं काउंसलिंग करती हूँ। और ये सारे एरिया क्या है, या तो किस चीज से प्रॉब्लम है उनकी, या तो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो उनके वही थॉट्स और बिहेवियर में आ गए हैं, या फिर उनकी सोच की वजह से। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, आप कांटेक्ट करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करें। जनरली क्या होता है, मेंटल हेल्थ की वजह से लोगों को ये विश्वास ऐसा लगने लगता है, मेंटल हेल्थ मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि उनको दिमागी कोई परेशानी है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपकी दिमागी परेशानी है। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या चीजें हमारे लिए टेक अवे क्या है, या चीजें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बचपन के या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से हमारा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, और उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही हमारे थॉट्स आते हैं, हमें गुस्सा आता है या हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं। और वो जो हमारे इस तरीके के जो हमारे नेगेटिव थॉट हैं, सीबीटी से हम उनको पॉजिटिव थॉट में बदल देते हैं। और उसके साथ साथ हमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये विश्वास रखना है कि हम हर काम कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे पहली बार नौकरी में जाएंगे, बहुत पहली बार ट्रेनिंग में जाएंगे। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे तो आप कैसे सीखोगे? अगर आपके मन में आगे बढ़ने की चाह है, आप कुछ सीखना चाहते हो, तो अपने ऊपर विश्वास रखो। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो आप जो स्ट्रेस है, या अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, या रिलेशनशिप है, उनको हैंडल कर पाओगे। और हमें 3 स्टेप्स बहुत ध्यान रखने हैं सीबीटी के। एक्सेप्ट करो, फोकस करो, और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान करो। दो, और किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत है तो डोंट हेजिटेट टू सीक एनी एक्सपर्ट एडवाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप के लिए। और आप क्या चाहते हो? खुश रहना। और हमारी खुशी हमारे हाथ में होती है। हम अक्सर क्या होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। हम अपने थॉट से, अपने व्यवहार से हम अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर हैप्पीनेस is in your control. Your mental health is in control. आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, यही आपकी एक सच्चाई है, और जो आप खुद अचीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और अभी आपको कोई भी सवाल पूछना है, आप मुझसे क्वेश्चन सेशन में पूछ सकते हो। Thank you so much, Ruchi Goyal ma'am. Now, if someone have any kind of question, they can ask. I hope I have made my points clear to everyone. और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप लोग डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। Am I audible? Yes, ma'am. कोई भी छोटा छोटा सा भी सवाल हो ना, चाहे मेरी स्लाइड से लेके आपकी पर्सनल लाइफ से लेके, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। Yeah. Thank you so much, Ruchi ji.
एंड मेंटल हेल्थ ये ऐसा टॉपिक है कि जब सामने वाला अपने साथ बात करता है ना, तो उसमें काउंसलिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं रखा है इस वेबिनार में। मैम ने बहुत अच्छी तरह से थ्रू पीपीटी उनके पॉइंट्स क्लियर किए हैं। और अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर हर किसी का भी क्वेश्चन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सबको मेंटल हेल्थ है। आई हैव ऑल्सो मेंटल इश्यू, मैं भी बोल रही हूँ। हर इंसान को कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम आप कैसे हैंडल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब नहीं है कि आप बीमार हो, वो बीमार नहीं होता है। आप उस पे सॉल्यूशन पे फोकस हमेशा करिए। राइट। तो आप लोग ऐसा मत इसकी चिंता मत कीजिए कि हम कैसा हमारा मेंटल इश्यू के बारे में बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे। किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, हमारी हेल्थ है, हमको उसके बारे में सोचना है। तो जितने भी मेल, कुछ यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स भी कनेक्टेड हैं, अगर लेकिन मैं फीमेल्स को ही बोलूंगी, वुमेन को ही बोलूंगी कि आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ। और दूसरा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है वो भी आप शेयर कीजिए। इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर द मेंटल हेल्थ। ओके, सो पर्टिकुलरली तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आप अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। यस मंजरी गो अहेड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड थैंक रुचि मैम। आपने बहुत सही बोला है और एग्जैक्टली दिल को छुए ऐसा बोला है। मेरा यही सवाल है, मैं शायद से नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव, मुझे मालूम नहीं। मैं सोचती जो हूँ या जो करती हूँ, यस मैं मेरे पे बहुत भरोसा रख के करती हूँ, बट समटाइम व्हेन आई रिकॉल माय माइंड इन मीन्स मैं सोते वक्त मैं मेरे सब चीजें रिकॉल करती हूँ नाइट को, तो मैं सोचती हूँ यार जो कुछ बात कर रहे या सामने वाला कर रहा है वो मेरे फेवर में कर रहा है या मेरे अपोजिट कर रहा है, वो जब वो सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है यार नहीं, मेरे को कोई प्यार करता नहीं है या मेरी किसी को बात ऐसे समझती ही नहीं है या समझना नहीं चाहता है सामने वाला। सो मुझे कहीं तो ऐसे इतना फील होता है। और लिटरली मैम राइट नाउ आई एम नॉट ओके मूड, मीन्स इतनी में मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं बोल नहीं सकती। तो एक ऐसा ये होता है कि कहीं तो जाके मैं अकेले इतना जोर जोर से रोऊं कि कोई सुनने वाला भी नहीं होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन आई फील रिलैक्स व्हेनेवर आई क्राई। सो मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ जो मेरा ये जो सोचने का जो तरीका है या मैं मेरा निगेटिव जो कुछ है, मुझे मैं ये नहीं बोलती कि सामने वाला मेरे को निगेटिव वे में जा रहा, लेकिन मेरा सोचना है कि उस वो जो बात करते हैं या मेरे को जो सलीके से देखता है वो मेरे को कहीं तो चुभता है मेरे दिल को। सो मैं क्या करूँ या क्या कर सकती हूँ? ये जो मंजरी जी आपने सवाल पूछा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि पहली चीज तो ये है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, ठीक, वो अपनी सोच से बात कह रहा है, वो अपने तरीके से बात कर रहा है, हो सकता है वो अपनी तरीके से उसकी सोच के हिसाब से वो तरीका सही हो। और आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, XYZ, एक ही बात को चार लोग चार तरीके से सुनते हैं और चार तरीके से उसे एज्यूम करते हैं। सबका अपना अपनी सोच है, वो एनालाइज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप हम कई बार क्या होते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, बस उतना ही सुनते हैं, उसके पीछे का मैसेज नहीं देखते हैं। इंटेंशंस हम एज्यूम कर लेते हैं चीजों को कि इसका तो ये मतलब ही होगा, वही बिलीव कार्ड बना लेते हैं कि ये है। इसने अगर ये सामने वाले बंदे ने कोई एक बात कही, मतलब इसने हमारे लिए इंटेंशन खराब है। तो सबसे पहली चीज हमें ये अपने आप से पूछनी है ना, 3 सवाल करिए ऐसी परिस्थितियों में मंजरी जी आप हमेशा, कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ। कि इसने मुझे ऐसी क्यों बात की, इससे सोच के क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा। अगर मान लीजिए सामने वाले बंदे का इरादा खराब है, आपको दुख पहुंचाने का है, कहने दीजिए, लेकिन आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए, मैं क्यों बुरा मान रही हूँ उस बात का, कहने दो, वो उसकी सोच है। लेकिन मैं तो, अगर वो आपको कहता है आप बुरे हो, मैं बुरी नहीं हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखो, या सामने वाले का आपने ये काम ठीक से नहीं किया,
हर इंसान का अलग अलग पोटेंशियल है, आपको मैंने हिसाब से ठीक किया है तो मुझे तो क्यों परेशान होना, नहीं होना। वॉट मैं बेस्ट और क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन ये है आपके पास कि मैं परेशान नहीं होना है। पहली चीज तो आपको ये सोच लेनी है कि मुझे परेशान होना नहीं है कि सामने वाला कुछ भी कहे। अगर हम सामने वाले की सोच बात कहने से परेशान हो रहे हैं, इसके मतलब हमने अपनी खुशी का जो रिमोट है ना वो उसके हाथ में दे दिया है। मतलब वो चैनल चेंज कर रहा है, वो जब चाहेगा आपको गुस्सा कर देगा, जब चाहेगा आपको खुश कर देगा, जब चाहेगा आपको दुखी कर देगा। नहीं। और आपने जैसे कहा कि कई बार आप बहुत रो के आपको आराम मिलता है, वो है, ये बहुत अच्छी बात है, आप रो के मन हल्का कर लेते हो। लेकिन साथ के साथ अपने दिमाग पर और अपने आप पे आपको खुद पे विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत लेने दें। आप सोचें, कोई तरीका सोचिए। हम इस बारे में अगर आपको और बात करनी है, हम फोन पे बात कर सकते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं। आप अर्शिया से आप मेरा नंबर ले सकते हो, हम फोन पे बात करके इस पे डिटेल में आपकी एग्जाम के साथ 1-to-1 जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को फोन पे एकदम बहुत डिटेल में समझाना स्टेप बाय स्टेप बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप ये सब रखिए, 3 सवाल, व्हाट, व्हाई, हाउ और कैसे मैं इन चीजों को पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। ओके मैम, राइट। थैंक यू मैम। यस Thank you मैम। so much, Manjari, for asking question. Thank you so much, ma'am, for giving a reply. There is one more question. Bhakti Salvi is asking why people blame others and blamed by others. Is it because of one's upbringing? हाँ, बहुत कुछ इसी तरीके से होता है। क्योंकि ब्लेम करना मतलब अगर हम जो नहीं कर पा रहे, मतलब आप अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, अपने में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों को एक हथियार बना लेते हैं कि हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कि मैं तो बेचारा हूं, मैं तो कर नहीं सकता था या मैं नहीं कर सकती थी, तो हमने सारा क्या किया, दूसरे ब्लेम कर दिया। ज्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हाँ दूसरे की वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है। मान लीजिए कोई एक सिनेरियो ऐसे समझिए कि आप फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स, एक की ऑफिस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, हर में अलग अलग पोटेंशियल है। मान लीजिए जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जो बहुत होशियार है, वो आपके बॉस को जाके कह दे कि बी लड़की अच्छा काम नहीं कर रही है, हम इसके लिए इसका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं देंगे, इसको ज्यादा काम नहीं देंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जो बी वाली लड़की है उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, और सेल्फ डाउट की वजह से वो एक अलग जोन में चली जाती है, चिंता परेशानी तो जो हुई, प्लस क्या होता है कि साथ के साथ वो ई वाले को भी सोच लगती है अब मुझे इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो आप अगर ऑप्शन ये है कि आप ये सोचें कि ठीक है करने दो, लेकिन मैं धीमे धीमे मेहनत करके अपने क्वालिटीज इंप्रूव करूंगी, मेहनत करूंगी और अपने एक लेवल पे ले आऊंगी। अगर नहीं भी लाते हैं तो हम अपने आप को बचने के लिए ज्यादातर दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि आपके जो अपब्रिंगिंग हो रही है, क्योंकि हमने सीखा ही यही है कि दूसरों को ब्लेम कर दो, और ब्लेम करके आप अपने आप को बस बेचारा बना के दिखाना चाहते हो कि हम तो सही है, दूसरे ने मेरे को गलत किया है। और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा है मैम कि ज्यादातर लोग दूसरों पे ब्लेम करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक और सवाल है प्रियंका मरने से, उन्होंने कहा आई एम सो इम्पेशेंट मैम, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। हाँ, इम्पेशेंट होने का मतलब ये है कि आप हर चीज बहुत, एक तो पॉसिबल है कि आप बहुत परफेक्ट चाहते हो, आपकी एक अपने से एक्सपेक्टेशन हो जाती है जल्दी करना। जब भी इंसान बहुत बहुत सोचा विचारी करने वाला बंदा होगा, आई एम नॉट श्योर आप कौन, किसने ये सवाल पूछा है, श्योर जिन्होंने भी सवाल पूछा है। प्रियंका, क्या आपको लगता है कि आप बहुत सोचा विचारी करते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे काम हैं और इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी उन कामों की लिस्ट को पूरा करने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप ये सोचिए कि आप उन कामों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए।
एक काम जो बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, इसके मतलब आप उसको प्रायोरिटी पे करना है। एक काम ऐसे हैं इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, सेकंड कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। बट एक कैटेगरी हो गई अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब हमें, मेरा कहने का मतलब है कि आप चीजों को जल्दी खत्म करने की जगह, ये इम्पेशंस आता किस वजह से कि आपके बहुत सारे काम की लिस्ट है और आपके पास समय की कमी है, अब आप उनको जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हमें काम खत्म करने का टिक नहीं करना है, अब हमको ये सोचना है कि कौन सा पहला इंपॉर्टेंट काम है और एक इसको शेड्यूल तरीके से लिमिटेड टाइम में खत्म करने की कोशिश करिए। उस पे ये मत सोचे कि मतलब 1 घंटे में मुझे 4 काम खत्म करने हैं, 2 घंटे में, वो उससे आपको स्ट्रेस बिल्डअप होगा। तो हमें स्ट्रेस नहीं बिल्ड करना है अपना, हमें कूलली मेंटली रिलैक्स होके अपना किसी भी हालत में, जब आप ये जल्दी जल्दी काम शुरू करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा और मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा। थैंक यू सो मच मैम। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था हाँ बोलिए। कि गुस्से पे कैसे काबू करना है, क्योंकि गुस्सा अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कभी कभी इगोइस्टिक हम बन जाते हैं, और कभी कभी घमंड आ जाता है। तो ये तरह तरह की प्रकार होते हैं गुस्से का। एक ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर आवाज ऊंची करूंगी तो मैं गुस्सा नजर आएगा, नहीं, गुस्से का तरह तरह का प्रकार होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुस्से पे कैसे काबू करें, तो बहुत कभी आपको इम्पोर्टेंट। पता है लोगों को गुस्सा क्यों आता है? कई बार ऐसा होता है, गुस्सा इसका कारण कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा लाइफ में कुछ करना चाह रहा है और उसको लाइफ में वो करने का कभी मौका ही नहीं मिला, या कभी वो अपने मन की चीजें नहीं कर पाया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 15 साल तक वो चीजों को करता चला आ रहा है, दुखी है मन से, हेल्पलेस फील कर रहा है। और जब उसको एक ऐसी सिचुएशन आती है कि फिर से उसको कोई ब्लेम कर रहा है, कोई उससे शिकायत कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। जनरली जब कोई हम ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि तुम कभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, तभी जनरली इंसान गुस्सा करता है। तो गुस्से के पीछे हमें क्या जरूरी है, पहली चीज, जो इंसान गुस्सा कर रहा है ना, समझने की कोशिश करिए कि वो इंसान का गुस्से, हमेशा किसी गुस्से का कोई ना कोई एक कारण होता है। जनरली हम एक टैग कर देते हैं, ये तो हमेशा गुस्सा ही रहता है, ये तो गुस्सा ही हो जाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम समझेंगे उसके गुस्से का कारण, और इस गुस्से की वजह से क्या होता है, या तो लोग उससे दूर हो जाते हैं या लोग उससे अवॉइड करना कर शुरू कर देते हैं, उसका फ्रेंड सर्किल भी लिमिटेड हो जाता है, उसका और फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो सॉरी आपका क्वेश्चन मैं मिस कर गई, क्या था मंजरी जी? मेरा सवाल था, सृजिता नाम है मेरा। ओके अ, सर। मेरा सवाल ये है कि गुस्से को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए एक ओके, इंसान। गुस्से को काबू करने के लिए जो बंदा, पहले तो गुस्से का कारण हमने बात की, हमको अगर गुस्से में अपने कंट्रोल करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग एक सीबीटी में यूज करते हैं प्लैक कार्ड, जिसको हम कहते हैं स्टॉप कार्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉप कार्ड यूज किया, बहुत मुश्किल है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। जब हम स्टॉप कार्ड यूज करते हैं, इसका मतलब जैसे आप रेड सिग्नल पे खड़े हैं, स्टॉप हो गया, मतलब आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। अगर आप 3-4 बार भी आंख बंद करके एक्सहेल इनहेल करते हैं, मतलब ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, तो जिस चीज की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, फॉर अ सेकेंड आप वहां से डिस्कनेक्ट कर लेते हो अपने आप को। जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो आप फिर वही 3 सवाल, हर प्रॉब्लम में, कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं ना, 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब आपको गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा है, क्या ये वर्थ है गुस्सा?
उससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, वो बच्चे का जब प्रेजेंटेशन दे रही थी एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे ने एग्जाम गलत बता दिया कि मैथ्स का एग्जाम है और था इंग्लिश का एग्जाम, राइट। और क्या हुआ, जैसे ही मदर को पता चला, उसको मान लो गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि बच्चे ने टाइम टेबल सही नहीं देखा, या मदर से बाई एनी चांस किस वजह से मिस आउट हो गया। ठीक, तो अगर मदर उस समय गुस्सा होती, गुस्सा होना बहुत इजी ऑप्शन था, अगर गुस्सा होती तो उससे क्या फर्क पड़ता? उस समय अगर होती तो बच्चे का टाइम वेस्ट होता, खुद का टाइम वेस्ट होता, कितना बच्चा रोता, फिर उसको आप चुप कराते, क्योंकि आप गुस्सा हो गए, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया, फिर आप काम डाउन होना शुरू करते, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ फ्रूटफुल होता, कितना, मतलब 1 घंटा, आधा घंटा तो आराम से आपको कूल डाउन होने में लग जाता है। तो आपने, लेकिन अगर इंटेलिजेंस यही है, स्टॉप कार्ड ही किया, थोड़ी सी पेशेंस रखी और अपने आप को ये कमांड दिया, नहीं, इससे चीजें बिगड़ेंगी, इससे चीजें डिले होंगी, लेट मी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। हम अपने जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको हम अपने पॉजिटिव थॉट में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा कि आप थोड़ी ही देर में रिलैक्स होना शुरू कर जाओगे, और उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हम सॉल्यूशन पे फोकस करें, ना कि हम प्रॉब्लम पे। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज गुस्से में भी यही हो जाता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं, हमारे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो सीबीटी के तरीके हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव लाना, इसमें एक चीज और होती है कि हम यूज करते हैं बॉडी स्कैन एक्सरसाइज। बॉडी स्कैन एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, स्कैन इटसेल्फ सेज कि आपको अपने पूरा स्कैनिंग करनी है फ्रॉम हेड टू टो। मतलब आपको रिलैक्स होके अपने एक एक मसल को फ्रॉम हेड, अपने ब्रेन को रिलैक्स कमांड दीजिए, अपने फोरहेड को, अपने आईज को। लेकिन जब आपको गुस्सा आ रहा है तब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग प्रैक्टिस करोगे तो हर, मतलब टो तक अपनी एक एक मसल को करोगे, और रिलैक्स शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, टोज, सबको, तो आप 15 से 20 मिनट में यू विल फील बेटर। और रेगुलर प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली आपका एंगर कंट्रोल में आ जाता है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने एक स्टॉप कार्ड के बारे में बात किया, क्या वो 5 सेकेंड्स ऑफ ब्रेक है? हाँ, जस्ट आप सोचिए, स्टॉप, स्टॉप ऐसा है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो स्टॉप कार्ड है, अपने हाथ को सोच सकते हो कि ये स्टॉप की तरह यूज करना है, अपने बिंदी को आप सोच सकते हो कि ये मेरा स्टॉप कार्ड है। कोई भी चीज से आपको बेसिकली करना है कि स्टॉप कार्ड यूज किया। Okay. There is a one question from नेहा चव्हाण. नेहा, मला असं वाटते की तू स्वतः बोलावं जे काय आहे. तू हिंदी नाही बोलू शकत का नेहा? हेलो Okay. नेहा. हाँ मैडम, एक मिनट। मैडम, आप रुचि मैडम मराठी समझते हैं आप? मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ मैं, अगर कुछ ओके होगा है आप, ओके। मैं उनसे हेल्प ले लूंगी। हाँ, नहीं नहीं नेहा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बोलने के लिए, लेकिन आप बोलिए, आप आपने आपका माइक म्यूट किया है, अनम्यूट किया है, नेहा बोलना चाहते हेलो हेलो मॅडम, हाँ बोलिए। माझं आहे ना असं 31 मेला माझे मिस्टर ऑफ झाले, कोरोनामुळे झाले. पण आम्ही स्टार्टिंगलाच म्हणजे ताप आल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी आम्ही हॉस्पिटल डॉक्टरकडे गेलो होतो. पण डॉक्टरांनी सांगितलं तेव्हा व्हायरल फीवर आहे. दुसरा डॉक्टर चेंज केला, त्यांनी पण तसंच सांगितलं. आणि नंतर मग टायफॉइड वगैरे टेस्ट केल्या, पण न्यूमोनियाची टेस्ट केली नाही. याच्यामध्ये 5-7 दिवस निघून गेले आणि त्यांना ऑक्सिजनचा त्रास व्हायला लागला. ओके त्यानंतर आम्ही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यासाठी खूप फिरलो, पण तेव्हा खूप बेड म्हणजे अवेलेबलच नव्हते कुठेच. खूप आम्हाला त्रास झाला आणि एका हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशन मिळालं, पण तिथे
त्यांनी 4 दिवसानंतर सांगितलं की आमच्याकडून नाही होते, व्हेंटिलेटर वगैरे लागू शकतं. ओके. तर त्यांनी मग तिथून आम्हाला शिफ्ट करायला सांगितलं. आम्ही ओके. ट्रॉमा केअर मध्ये शिफ्ट केलं, पण तिथे ऑक्सिजनचा पाईपलाईनचा इश्यू झाला. त्यांची रिकव्हरी होत होती, पण तिथे ऑक्सिजन पाईपलाईनचा इश्यू झाला ओके. आणि त्याच्यामध्ये माझे मिस्टर हे झाले, ऑफ झाले. हो हो. पण ओके. स्टार्टिंगला डॉक्टरांनी आम्हाला असं सजेशन दिलं की तुम्ही घरीच हे करा, म्हणजे असू शकतात पॉझिटिव्ह, तर तुम्ही घरीच काळजी घ्या, हीच औषधं देतात. आणि या डॉक्टरांच्या सजेशनमुळे आम्ही लगेच ऍडमिट केले नाही, 5-6 दिवस निघून गेले त्याच्यामध्ये हा त्यांचा त्रास वाढला. पण त्यासाठी मला नातेवाईकांनी किंवा कॉलनीमधल्या लोकांनी मला जबाबदार धरलं की म्हणजे तुझ्यामुळे असं झालं, किंवा तू काळजी घेतली नाही, किंवा तू वेळेवर. आणि त्यामुळे माझ्याही मनात तसंच गिल्ट येतं की म्हणजे माझ्यामुळे असं कदाचित झालेलं असू शकतं. माझी मुलं आहेत, मुलगा आहे 17 वर्षाचा आणि मुलगी हा. आहे 13 वर्षाची. ओके. पण माझ्या ना खूप वेळा असं मनात येतं की असं काहीतरी खावं, मुलांनाही द्यावं आणि सर्व संपवूनच टाकावं. म्हणजे असं खूप हे होतं, गिल्ट येतं की माझ्यामुळे माझ्या मिस्टरांचं असं झालं, किंवा मी माझ्या हाताने जीव घेतला, असं माझ्या मनात खूप वेळा येतं. आणि अजूनही मी त्यातून बाहेर नाही आली आहे मॅडम. म्हणजे मी हं. खूप प्रयत्न करते, पण नाही जमत आहे मला. म्हणजे त्याच्यावर काही तुम्ही हे करू शकता का मला? नहीं, सुन के थोड़ा खराब भी लगा। आप चिंता मत करो। एक बार लेकिन अर्शिया, मैं थोड़ा सा इसमें और समझना चाहूंगी। मैं पूरी बात नहीं मराठी समझ पाई हूँ मैं भी। Yes, yes, तो yes. उन्होंने कहा, नेहा नाम है ना आपका, है ना? Yes. हाँ कि उनके नेहा के हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी और अलग अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और लास्ट में बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से पहले मतलब टाइफाइड, फिर निमोनिया, और बाद में ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से उनका हस्बैंड नहीं रह पाए, और Correct. को बहुत गिल्ट फील होता है। 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का और लड़की, 17 और 13 साल के, राइट? और सभी उनसे मतलब कहते हैं कि आ, कि ये मतलब उन्हीं के वजह से हुआ है, हाँ, उनको ये ब्लेम कर रहे हैं। उनको ब्लेम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स एंड उनके और कॉलोनी के जो वजह लोग से थे। उनको बहुत, हाँ, राइट? यस, और नेहा को लग रहा है कि मतलब शी फील्स टू गिल्ट कर रही है। सुसाइड, मतलब उसको लग रहा है कि अपने बच्चों को कुछ खिला दे और मैं भी कुछ खा लूं और मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, ऐसा उसे लग रहा है। ओके। फिर आप नेहा को मराठी में आप समझाओ कि मराठी हिंदी समझ लेती है नेहा? नेहा, हिंदी समजतं तुला? नेहा, हिंदी समजतं? अनम्यूट करना, अनम्यूट करा। हाँ समझ हिंदी सकती हूँ। समझते ओके। हो ना? तो मैं बताती हूँ। देखो, आप ना, पहली चीज, मुझे आपके बारे में जान के बहुत दुख हुआ, और आपकी परिस्थिति भी मैं समझ सकती हूँ कि मतलब यहाँ पे वही हो रहा है। देखिए, मैं अगर इसको सीबीटी से कनेक्ट करूँ कि यहाँ पे वही ब्लेम गेम हो गया। कई बार परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आपने अपनी तरीके से पूरी जो भरपूर प्रयास कर सकते थे, आपने वो प्रयास किया। जितना, अब ऐसा तो हुआ नहीं आपने कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं इलाज नहीं करूंगी, लेकिन गलती किस पार्ट पे हुई? हॉस्पिटल की साइड से, क्योंकि वहां पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, तो पहली चीज तो आप किसी चीज के लिए भी अपने आप को ब्लेम मत करिए। जो हो गया आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है? तो हमने यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेंस आ जाता है, जो सीबीटी का पहला सॉल्यूशन था हमारा। लेकिन आपके 2 बच्चे हैं, आप ये सोचो, लोग, आपका क्या काम है इस समय? आप पहली चीज तो बिल्कुल निराश मत हो, और अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम मत करो। अब ये सोचो, बच्चों को अगर आप कह रहे हो कि मैं उनको कुछ खिला दूं, खुद खा लूं और हम मर जाएं, क्या ये सॉल्यूशन है इस चीज का? नहीं। आप ये सोचो, मैं अपने बच्चों का भविष्य और कैसे अच्छे बना सकती हूँ। कमजोर नहीं पड़ना है आपको यहाँ पे। आपने ये देखो, आपकी क्या ताकत है। आपको अपने ऊपर हिम्मत रखनी है, विश्वास रखना है, और उन बच्चों को आपको एक अच्छा फ्यूचर देना है।
पढ़ाई से दे सकते हो, उनको कोई एक ट्रेनिंग दिला के। आपको तो SNDT के यहाँ पे पुणे के सेंटर में अर्शिया लोग आप लोग को भी हेल्प कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है। पहली चीज तो आप अपने बच्चों को जितना पढ़ा, जहां तक पढ़ा सकते हो वहां पढ़ाने की कोशिश करो। दूसरी चीज आप क्या करो, उनमें अगर वो कंप्यूटर में अच्छे हैं, गाने में अच्छे हैं, खेल में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, जो भी चीज में एक अच्छे हैं, उस चीज पर ध्यान दो। क्योंकि बच्चों को अगर वो अपनी पसंद की चीज करेंगे, उनको बहुत खुशी मिलेगी। और आप हिम्मत बिल्कुल मत हारो, अपने ऊपर विश्वास रखो और ये कहो कि मैं बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनाऊंगी। क्योंकि अब आप प्रॉब्लम को, आपके सोच के उन परिस्थितियों को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच से बच्चों का भविष्य बदल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बच्चों का भविष्य बिल्कुल मत खराब करो। उनको जो चीज चाहिए उनको उस चीज से मदद करो, और अपने ऊपर कभी गिल्ट मत करो। आप इस चीज को, ये दुनिया है, दुनिया कहती यही है कि वही ब्लेम वाली चीज हो गई कि आपने करा, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी निराश मत हो। आप अर्शिया प्लीज नेहा का नंबर आप मुझे दीजिए, आप मुझे नेहा को मुझसे कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं अलग Yes, से उनसे बात कर लूंगी। इनफैक्ट अच्छा मराठी का चैलेंज लेकर जरूरत होगी मैं आपके थ्रू बात करूंगी। sure, no problem. ठीक है नेहा, आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल ये स्टेप मत लेना, ये कमजोर लोगों का स्टेप होता है कि सुसाइड करना चाहते हैं। आपको अपने आप को कमजोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आप बच्चों की ताकत बनो, बल्कि हिम्मत बनो बच्चों की, उनको सांत्वना दो और उनको साहस दिखाओ। ठीक ठीक है ना? हाँ इनफैक्ट हाँ आप मैम। नेहा के एग्जाम्पल में आप लोगों से एक एग्जाम्पल शेयर करना, एक उदाहरण देना चाहूंगी। बहुत ऑल्दो नेहा से कंटेस्ट से नहीं है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि एक बार एक बेटा अपने फादर के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। उसके पास बहुत सारा सामान था, तो वो इतने निर्दयी थे, उन्होंने सोचा कि मैं सारा सामान गधे के ऊपर नहीं रखता हूँ। दोनों फादर और बेटे एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने लगे। तो वहां पे लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं ये लोग, तो सारा सामान खुद ही कैरी कर रहे हैं, गधे को साथ में लेके जा रहे हैं, सामान गधे पे रख देना चाहिए। तो बेटा ने सोचा हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने सामान गधे के ऊपर रख दिया। थोड़ी दूर गए, कुछ लोग मिले, उनका कितने, बेटा कितना निर्दयी है, फादर पैदल चल रहा है और सारा सामान गधे पे रखा हुआ है, तो फादर को गधे पे बैठाना चाहिए, तो कम से कम उनके पैर में तकलीफ तो नहीं होगी। बेटे को लगा कि हाँ ये भी बात ठीक है, उन्होंने सारा सामान खुद ले लिया और फादर को गधे पे बैठा दिया। आगे गए, क्या कहा कि फादर कितना निर्दयी है, देखो बेटा सारा सामान लेके जा रहा है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, ये दुनिया है, हर कोई हर चीज को गलत गलत तरीके से देखता है, हर का तरीका गलत। वो उनके हिसाब से, सामने वालों के हिसाब से समझो, तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है। तो हमें खुद डिसाइड करना है यहाँ पे कि हमें लाइफ में करना क्या है। दूसरों की राय से कभी कंफ्यूज नहीं होना। अरे नेहा, आपको चार लोग चार चीज कहेंगे, कहने दो। आप अपना भविष्य खुद सुधारो, बच्चों का भविष्य खुद सुधारो। कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन निराश नहीं होना है, बिल्कुल हार नहीं माननी है। ठीक है? नेहा आपका म्यूट हो रहा है। सामने से पहचान वाले भी आते हैं ना, तो ऐसे मुंह घुमा के चले जाते हैं। जो अच्छे से बात करते थे वो भी अभी अच्छे से बात नहीं करते। ऐसे उनको लगता है कि मैंने ही कुछ किया है, मैंने ही, मेरी वजह से ही हुआ है। तो बिल्कुल वो गिल्ट गिल्ट करने की मेरे को जरूरत बहुत नहीं है, आपने जो तकलीफ देता है। पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था उस पे काम किया है। कुछ मत सुनो समाज की, दोस्तों की, कोई सुनने की, अपने ऊपर विश्वास रखो और बच्चों के भविष्य पे काम करो।
वो सबसे ज्यादा उनका भविष्य सुधारो आप। और जब बच्चे खुश होंगे तो आपको अपने आप खुशी मिलेगी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? आवाज आ रही मैम? हाँ बोलिए। मैम मेरा नाम प्रभा है। एक्चुअली मैम मुझे मतलब पहले मेरा जो ये था ना नेचर एकदम शांत, मुझे गुस्सा वगैरह ऐसे कुछ नहीं आता था। कोई मतलब कितना भी हमारे ऊपर रिएक्ट करे तो मैं एकदम शांत होती थी, तब मेरा कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन मेरे इस स्वभाव की वजह से लोग ना एकदम ग्रांटली लेने लगे, तो मेरी इमेज डाउन होने लगी फिर तब से। तो बाद में मेरा नेचर चेंज होता गया कि कुछ बातों पे मैं रिएक्ट होने लगी। पहले तो लोगों में ऐसी इमेज हो गई कि फिर हाँ ये अच्छी है अच्छी है, बाद में मतलब इसके साथ कैसे भी बिहेव करो तो ये कुछ रिएक्ट नहीं करती। बाद में थोड़ा सा मतलब मूड स्विंग होने लगा कि Right. मतलब ऐसे मतलब कभी अगर गुस्सा आया है तो सडनली मूड चेंज हो जाता है, फिर हंसने लगती हूँ। बाद में फिर कोई किसी चीज के ऊपर डिस्कशन होने लग जाता है तो कब गुस्सा आ जाएगा ये भी पता नहीं चलता। कब किसी के ऊपर गुस्सा आया है तो मतलब वो स्टेबल रहना चाहिए ना, कि सामने वाले को लगना चाहिए हाँ इसको गुस्सा आया है अभी, तो मतलब वो भी क्या रिएक्ट करना है उसको भी समझ में आएगा। नहीं, Right. लेकिन वो उससे भी स्टेबल नहीं रह पाती, सडनली चेंज हो जाता है हाँ मेरा गुस्सा चला गया। तो इसकी वजह से भी इमेज थोड़ी सी चेंज होने लगी सामने वाले के मन में कि हाँ ये तो ऐसे ही, इसको कब क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, इसके साथ कैसे बिहेव करो, इसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है। तो मतलब वो स्टेबल नहीं रह पा रही मैं अपने इस पे, तो इसकी वजह से भी सामने वाले की इमेज चेंज हो जाती थी। थोड़ा सा मतलब ये मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल साइको ऐसे होने लगा है। नहीं, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन है? हाँ इसमें क्या है कि पहले जैसे आपने कहा बहुत ही एडजस्टिंग थे, चीजों को पूरा नहीं मानते थे। हाँ क्या हुआ, आपने दूसरों को लिबर्टी दे दी कि आप जो कह रहे हो, मतलब दूसरा कुछ भी कह रहा है कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया चीजों पे। हाँ तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको एक लाइन खुद ही ड्रॉ करनी पड़ती है। हमको इतना नहीं फ्रीडम देनी चाहिए किसी को कि वो आपको मिसयूज करे। तो जहाँ पे भी अगर ऐसा हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्लियर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ, क्या है कि अगर हमें किसी की बात खराब लगी, ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमें डायरेक्ट उससे एकदम झगड़ा करके कि तुमने मुझसे ऐसे क्यों कहा। ऐसे कहने से और झगड़ा बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी बात से कि अगर ये बात इस तरह कहते तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती, और हमने क्या कहा, पॉजिटिव तरीके से अपना एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, कन्वे कर दिया कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम मुझसे इस तरीके से बिहेव करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो सामने वाले को हमेशा ये पता चल जाएगा कि ये इसको अगर हम गलत तरीके से बात करेंगे तो ये हमें कम्युनिकेट कर देगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या अपनी किस तरीके की हमें चाहिए। हमें अगर आप ये सोचो कि कोई आपको वीआईपी की तरह ट्रीट करेगा, वो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर इस तरह के चाहता है तो इसका मतलब वो गलत एक्सपेक्टेशन है उसकी। एक रीजनेबल तरीके से आपके साथ विदाउट आपकी कोई ईगो हर्ट किए हुए, आपको कोई परेशान किए हुए, नॉर्मल तरीके से अगर बात नहीं कर रहा है, पहली चीज तो आप उसे पोलाइटली कम्युनिकेट कर देना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि अभी आपको छोटी छोटी बातों पे या गुस्सा आ जाता है या आप रिएक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे भी यही है, आपने क्यों रिएक्ट करना शुरू किया? जैसे मैंने एंगर के लिए किया था, हर चीज का कारण होता है। यहाँ कारण क्या हुआ कि लोगों ने आपके सिधाई का फायदा मान लीजिए उठाया, और आपकी जो वैल्यू थी, मतलब आप क्या चाह रहे थे कि आपको जस्ट एक रिकॉग्निशन और एक सिंपैथी, एक आइडेंटिटी मिले और आपको सब समझें कि यू आर अ नाइस पर्सन, राइट, जो कि आपको नहीं मिला। नहीं मतलब वैसे इंटेंशन ऐसे नहीं था कि कोई मुझे नाइस पर्सन बोले, वो नेचुरली बिहेवियर ही वैसा था, बट बाद में जब लोगों का बिहेवियर हमारी तरफ ऐसे होने लगा तो सडनली वो बिहेवियर चेंज होता गया, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा। और जब हाँ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है तो हम इस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं।
तो जब आप क्या करोगे, अगर आपको अपना फ्रस्ट्रेशन या रिएक्ट करने के टेंडेंसी चेंज करनी है, तो पहले अगर आपको किसी की बात खराब लग रही है तो आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा आपसे उसने बिहेव कर रहा है तो मैं किस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से ये कम्युनिकेट करना है मुझे कि मुझे इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है, उसकी जगह मुझसे पोलाइटली बात करो। शुरू में आपको दिक्कत होगी ये करने में, लेकिन जब आप सोचोगे कि मैं कैसे अपना मैसेज कहना है, वो आप धीमे धीमे प्रैक्टिस से सीख जाओगे और उसके बाद आपके फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएंगे। ओके, राइट? तो यस मैम। हाँ, तो इनफैक्ट आप लोग जितने भी लोगों, अगर आप चाहो तो मैंने 2-3 वीडियो अपने फेसबुक पेज पे भी इन सब चीजों से रिलेटेड डाले हुए हैं। अब वो वीडियो मेरे हिंदी में है, वो आप हिंदी में वीडियो सुन सकते हो। इवन आर्टिकल्स लिखे हुए हैं मेरे पेज पे, मैंने अभी तक 22 आर्टिकल लिखे हैं। उन आर्टिकल को भी अगर आप पढ़ोगे, वो सोल्यूशन के साथ मैंने लिखे हुए हैं। तो आप लोग जो कुछ भी, जितनी भी जिस चीजों की डिस्कशन कर रहे हो, वो सारे सोल्यूशन मैंने अपने आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। और जिनको भी अगर आगे भी मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, आप अर्शिया से, और इसमें यहाँ पे भी चैट में मेरा नंबर शेयर कर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके मैम, ओके, तो मैं आपको इन थैंक यू सब मैम। से भी बता सकती हूँ। रुचि जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। एक्चुअली आई एम वेरी मच कमिटेड पर्सन। अभी हाँ, ये मेरा बिहेवियर में है या पता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को कुछ कमिटमेंट देती हूँ या फिर कुछ प्रॉमिस करती हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में बहुत स्टेबल रहती हूँ कि मुझे ये करना ही है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया। और अगर सामने वाला बंदा भी मुझे कुछ कमिटमेंट दे रहा है या फिर प्रॉमिस दे रहा है और सेम वो आप पूरा एक्सेप्ट नहीं करें। करता है, हाँ, या और वो पूरा नहीं करता है और बहुत सारे रीजंस उसके पीछे देता है, नो लाइक कि बाबा ऐसी सिचुएशन थी, वैसी सिचुएशन थी, इसलिए हो नहीं पाया। एंड हर टाइम मैं समझ लेती हूँ कि ठीक है, हम समझ लेते। बट क्या है ना, एक मेरा एक आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर गर्ल, मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और मेरा एक मानना होता है कि सामने वालों को मैं 2 बार ही सुनती हूँ कमिटमेंट के बारे में। अगर आपने एक चीज के बारे में कमिटमेंट दिया है तो ठीक है, एक बार आपसे पूरा नहीं होता है, सेकंड टाइम एक डेडलाइन दिया होता है, आप पूरा नहीं करते हो, लेकिन तीसरी बार भी अगर वो क्वेरी वापस से आ जाती है ना कि नहीं हुआ, उसके लिए ये रीजंस है, तो मतलब मैं लॉस हो जाती हूँ। आई वॉज लॉस्ट, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं उस बंदे को कुछ नहीं करती हूँ, उसके ऊपर कुछ भी बोलती नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन मुझे मेरा खुद में नुकसान सेल्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका डेडिकेशन है, इतना कमिटेड हो आप अपनी चीजों के लिए, या आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताता है। लेकिन अगर आप, 2 सिनेरियो हैं कि जब आप किसी से कोई काम दे रहे हो या किसी ऐसे टास्क पे काम कर रहे हो जिसपे आपको एक सर्टेन डेट तक उसके रिजल्ट चाहिए, तो पहली चीज यहाँ पे आपको एक स्टेप करने की जरूरत है कि जब आप कोई भी काम असाइन कर रहे हो या कर रहे हो, एक डेडलाइन जरूर दे दो आप। उससे क्या होगा, और वो डेडलाइन हमेशा जो एक्चुअल डेट्स है, क्योंकि आपके जो आप लोगों को देख के बता देते हैं ये तो डिले करेगा ही करेगा, एक एटीट्यूड होता है लोगों का, बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है, तो वो डिले करेगा ही करेगा। तो आप ये सोच लो, अगर आपको मंडे को काम कोई कंप्लीट चाहिए तो आप उसको चाहे फ्राइडे की डेडलाइन दे दो, ज्यादा ज्यादा सैटरडे की डेडलाइन दे दो आप। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन है कि आपका काम मंडे तक हो जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाता है सवाल कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो रही है, विच इज वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आप जब डेडलाइन दे दोगे और थर्सडे को आपने एक रिमाइंडर भेज दिया, ठीक, कि आपको कल डेडलाइन है, और अगर नहीं होगी तो 1 बार 2 बार जैसे आप कह रहे हो करते हो, तो नेक्स्ट टाइम से व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लियरली कम्युनिकेट टू दैट पर्सन कि ये डेडलाइन है, अगर नहीं होगा तो मुझे दूसरे बंदे को वो टास्क देना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट माय वर्क टू बी डन बाय दिस सो एंड सो डेट। तो आपकी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे अपनी मेंटल पीस
यहाँ पे वही वाली बात है कि हम अपने मेंटल पीस का रिमोट दूसरे के हाथ में हमें नहीं देना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ हमने क्या निकाला कि हमारी पीस ना डिस्टर्ब हो, चाहे आपने 3 दिन पहले की डेडलाइन दे दी या 4 दिन पहले की डेडलाइन दे दी, हमें उस डेडलाइन तक होना है, क्योंकि आपके हाथ में फिर थोड़ा टाइम है। अगर आप किसी दूसरे को असाइन करते हो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पता है कि वो बंदा टाइम पे काम नहीं करेगा, तो आप उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको सिर्फ आधा काम दीजिए, 2 लोग में काम डिवाइड कर दो अगर पॉसिबल है। ऐसा केस, ऐसे सिनेरियो है पॉसिबिलिटी, तो आपने क्या हुआ कि एक से थोड़ा काम हुआ, वो डिले करेगा ही दूसरा वाला बंदा, दोनों को आपने कंपाइल कर दिया, तब आपका सोल्यूशन निकल गया। तो लेकिन ये तो हमने दूसरों को काम के लिए कहा, अपने लिए प्लानिंग जरूरी है, और क्या एक्शंस ले रहे हैं जो मैंने सोल्यूशन बताया, उससे आप अपना सेल्फ, मतलब अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। यहाँ पे भी ये मेंटल हेल्थ की बात आ गई, सोल्यूशन पे ध्यान दिया। अगर मान लीजिए वो बंदा है, इसी तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि जैसे हर इंडिविजुअल, हर दुनिया में 4 तरीके की पर्सनैलिटीज होती है, फ्लेगमेटिक, सैंग्विन, कॉलरिक एंड मेलंकली। एक आर्टिकल मेरा इसके ऊपर भी है, तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं बंदे को उस आर्टिकल के। जब आप पढ़ोगे उस आर्टिकल के हिसाब से आप देखोगे, एक लोग होते हैं जो परफेक्शन चाहते हैं, एक पर्सनैलिटी होती है कि वो कह देते हैं लेकिन काम कभी पूरा नहीं करते, चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, एक बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हर इंसान का 2 से 3 पर्सनैलिटी का होता है। तो आप वो काम फिर उस बंदे को दो कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है उसकी। तो हाँ, तो आप वो पर्सनालिटी प्लस का आप मेरा पढ़ के देखना आर्टिकल, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें ये काम, किस तरीके का काम किस तरीके के बंदे को देना है। कोई बहुत फन लविंग होता है, तो आप कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं तो आपने उसको असाइन कर दी। कोई थ्योरेटिकल ज्यादा काम है तो मेलंकली बंदे को दे दिया, राइट। तो आप वो देखो, क्योंकि सॉल्यूशन पे फोकस करना है हमें। Sure. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks to our honorable speaker, Ruchi Goyal ma'am, for giving us valuable information regarding this subject. तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, आपने बहुत सारे क्वेरीज आपने हमारे पूरे किए। And then I would like to thank Dr. Bhaskar sir and Miss Arshia Walikar and Miss Namrata Satpute and the team of SNDT Smart Center and participate for being present for webinar. और जाने से पहले मैं एक इंस्पायरिंग कोट देना चाहती हूँ जो एक मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। रसल विल्सन ने कहा है, इफ वी स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट आवर पेन, our anger and our shortcoming instead of pretending they don't exist, then maybe we will leave the world a better place than we found it. इसका मतलब हाँ, ये जो आपने कहा था वही है कि अपनी सोच में सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, यानी कि आत्म संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात करना चाहिए जो भी दिल में है किसी अपने के साथ, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखो। आई कैन डू इट, कैन नॉट का फोन कॉल नहीं लेना है, सेल्फ डाउट का फोन कॉल नहीं लेना है। तो थैंक यू सो मच मैम, इससे ही हम ये सेक्शन एंड करते हैं। एंड फीडबैक फॉर्म दिया है तो सारे पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज फीडबैक फॉर्म भरिए, अपने चैट बॉक्स में दिया है। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली एवरीवन। Yes, happy Diwali to you also, ma'am, and thank you so much for the wonderful webinar. Thank you so much. Thank you, and I would also like to have feedback from. Yes, sure. Okay, thank you. I'll leave now. Yeah. Yeah, and ma'am, please do share the PPT to me. We'll send to the participants. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye.